Good morning, children. Our next chapter is change in the profit sharing ratio among existing partners. But before starting the chapter, before starting the topic, let's have a quick recap of the last chapter we did. That was fundamentals of partnership. In the last chapter, children, we had an introduction part of partnership, that what a partnership is, what a partnership deed is, what provisions are applicable if there is no deed, what provisions are applicable if deed is there, how we calculate interest on capital, how we calculate interest on drawings, then how partners' capital accounts are prepared on the basis of fixed capitals and on the basis of fluctuating capitals, then what is P&L appropriation account, then guarantee to a partner and the past adjustments. That was a statement of past adjustments or statement of adjustments. We learned how to prepare statement of adjustments. Now children, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब एक पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो वो क्या क्या करती है, कैसे कैसे चीजों को मैनेज करती है, हाउ इट्स मैनेज द वर्किंग ऑफ द फर्म. अब कभी कभी क्या होता है, due to certain circumstances the agreement between the partner changes. Due to certain circumstances the agreement between the partners, the agreement, that is the partnership deed or the contract between the partner changes. This change in the contract reconstitutes the firm. The change in the contract between the partners results in reconstitution of the firm. That is, जब भी कभी एग्रीमेंट में चेंज होता है तो उस एग्रीमेंट में चेंज होने की वजह से पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो पुरानी फर्म चल रही थी वो बंद हो जाती है. बंद होने का मतलब ये नहीं है कि उस पर ताले लग गए, मतलब जो पुराने अकाउंट्स थे वो क्लोज हो जाते हैं और अब जो अकाउंटिंग की जाएगी वो एक नए सिरे से की जाएगी, एक नई स्टार्टिंग की जाएगी. दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जो पहले था वो बंद हो गया, अब एक नए सिरे से आप चीज़ों को करोगे. पार्टनर्स सेम है, वर्किंग सेम है, बिजनेस सेम है, कैपिटल सेम है, पर एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस जब होते हैं तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कारण हो सकते हैं. There can be certain reasons for this reconstitution. The very first reason is change in the profit sharing ratio. Change in the profit sharing ratio. Children, profit sharing ratio in short is known as PSR, and from now onwards I'll be writing PSR. I'll not write profit sharing ratio in full. The very first reason for the reconstitution is change in the PSR of the partners. Existing partners, जो कि हमारा टॉपिक है चैप्टर का, कि 3 पार्टनर्स थे, A, B and C, and these 3 partners were sharing the profits and losses in the ratio of 3:2:1. okay, ये 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे. सी कैपिटल लेके आया और अब सी का ये कहना है कि मुझे भी प्रॉफिट्स में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मेरी कैपिटल भी जो है वो बराबर है. तो अब इनका जो न्यू रेशियो हो गया वो हो गया 1:1:1. अब चिल्ड्रन अगर हम बात करें, पहले सपोज वी वर 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड मम्मा ने एक एप्पल दिया और मम्मा ने कहा आप इसको खा लो. ओके, तो जब हमने खाया तो वी हैड हाफ ऑफ द एप्पल, बोथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी हैड हाफ ऑफ द एप्पल. नाउ व्हाट हैपेंड, बुआ आ गई एंड बुआ के भी 2 बच्चे आ गए. We had 2 cousins also. Now we have 4 children in one house and mama gave us an apple that you had this apple. Share this apple in equal parts. What happened? Earlier we 2 brother sisters were having half of the apple. Now what will happen? We have to share that apple in 4 equal parts. That means earlier we were getting 1/2 and 1/2. Me half, my brother half. Now we have 2 cousins.
Now we are getting 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4 because that one apple is divided into 4 parts, that is 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4. तो रेशियो जो था पहले हमारा हाफ था, अब हमारा हो गया 1/4. इस रेशियो के होने से क्या हुआ चिल्ड्रन? दिस इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब इससे क्या होता है वो मैं भी आगे बताऊंगी. नाउ द सेकेंड रीजन फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक रीजन था कि जो पार्टनर्स थे उनमें आपस में ये एग्रीमेंट हुआ कि अब हमारा जो फ्यूचर का रेशियो है वो अलग हो जाएगा, चेंज होना चाहिए, और फ्यूचर का रेशियो चेंज हो गया. तो जब ऐसा होता है कि पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज कर देते हैं तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है. मींस जो पुराना सब कुछ होता है वो बंद हो जाता है और फर्म अब एक नए सिरे से स्टार्ट होती है. The second reason is the admission of a partner. Admission of a new partner. हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं, फर्म में एडमिट होना. सपोज मैं और मेरी सिस्टर एक बुटीक चला रहे थे एंड वी वर टू पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में. मेरी सिस्टर ने बोला माई फ्रेंड ऑल्सो वॉन्ट्स टू ज्वाइन द फर्म एज अ पार्टनर. वो भी ज्वाइन करना चाहती है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं फैशन डिजाइनिंग में एंड उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मार्केट में रेपो बहुत अच्छी है. आई एग्री टू इट. हमने उसको भी एडमिट कर लिया. तो दिस इज नोन एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. पहले क्या था, पहले हम दोनों ले रहे थे. अब क्या होगा, अब वो जो प्रॉफिट्स या लॉसेस थे या जो सब कुछ है वो अब क्या है, तीनों का है, क्योंकि वो पार्टनर भी कैपिटल लेकर आया है. पर उसके आने से पहले चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, हम अपना पुराना सब कुछ क्लोज कर देंगे, हम अपने आप में बांट लेंगे. अब हम जो भी करेंगे वो एक नए सिरे से करेंगे. ठीक है. This can be the one of the reason for the reconstitution of the firm. Reason number 3 can be retirement or death. Retirement or death. 3 पार्टनर्स थे, A, B और C. B का मन नहीं लग रहा था, उसकी झड़प होती थी रोज रोज A और C से, तो उसने सोचा कि फर्म को छोड़ के जाना ही अच्छा है रोज रोज की लड़ाई से. उसने सोचा फर्म को छोड़ के जाना ही अच्छा है रोज रोज की लड़ाई से, तो उसने क्या किया, फर्म को छोड़ दिया. पर उसने अपना बहुत कुछ दिया था फर्म को, तो वो सब कुछ लेगा, उसके बाद फर्म से जाएगा. तो जब रिटायरमेंट होता है, मीन जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहता है, तो इट इज नोन एज रिटायरमेंट. या हम कहें कि बी की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस के कारण, तो अब बी तो चला गया, तो बचे ए और सी. तो जब डेथ होती है या रिटायरमेंट होता है तब भी हम ये मानते हैं कि पुरानी फर्म बंद हो रही है. बंद होने का मतलब ताला लगना नहीं है, पुराने अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, और अब जो फर्म है वो क्या करेगी, नए अकाउंट्स के साथ मूव करेगी, न्यू अकाउंट्स मेंटेन करेगी, नए चीजों को डिसाइड करके, जो भी एग्रीमेंट में चेंजेस हुए उसके अकॉर्डिंग. द फोर्थ रीजन कैन बी अमलगमेशन. अमलगमेशन आपने पढ़ा होगा, मर्जर, मेल मर्ज या मर्जिंग टेक्स्ट. देखते हैं ना हम जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो मर्ज सेल्स आता है. क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि आप कंबाइन कर रहे हो दो सेल्स को, उसके बीच के गैप को हटा रहे हो. तो अमलगमेशन इज ऑल्सो नोन एज चिल्ड्रन मर्जिंग. जब दो पार्टनरशिप फर्म्स अपने आप को ज्वाइन कर लेती हैं, वो एक साथ मिलके काम करती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में दोनों अपने अपने पुराने अकाउंट्स को क्लोज करके और नए अकाउंट्स को प्रिपेयर करते. तो जब अमेलगमेशन होता है, दो फर्म्स ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या करती हैं, अपना पुराना सब बंद करके आती हैं, अपनी सारी चीजें अपने घर पे रख के आती हैं और एक नया बिजनेस आके स्टार्ट करती हैं. तो नए अकाउंट्स बनते हैं, नया अग्रीमेंट होता है. अब हमारा जो टॉपिक है, ऑल दीज थिंग्स, अमेलगमेशन को छोड़कर हम बाकी सब चीजें इंडिविजुअली पढ़ेंगे. दैट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमारा करंट चैप्टर है. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ. इसके साथ साथ वन मोर चैप्टर इज देयर इन दिस यूनिट विच इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. इट इज जस्ट लाइक अमेलगमेशन, कि आप अमेलगमेट करना चाहते हो, उसके लिए आप अपना पुराना बंद कर रहे हो. तो क्या होता है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन द PSR ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर. 3 पार्टनर थे, कोई नया नहीं आया, कोई गया नहीं, किसी की डेथ नहीं हुई, 3 के 3 ही बने हुए हैं. पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपसी समझौता करके, म्यूचुअल अग्रीमेंट करके
अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया है। फिर से एप्पल वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। हम दोनों थे, वी वर गेटिंग हाफ एंड हाफ। गर्मी की छुट्टियां हुई, बुआ भी आ गई, 2 बच्चे भी आ गए, वी हैड 4, नाउ वी आर 4 चिल्ड्रन एट होम। तो 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। अब क्या हुआ, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। पहले हमको हाफ हाफ मिल रहा था, अब 1/4 मिल रहा है। मीन्स हमारा जो शेयर था हमने उसको क्या किया, किसी को दे दिया, और जिसको दिया उसके पास पहले कुछ नहीं था, अब उसको मिल रहा है। हमारा शेयर हमने उसको दिया और जिसको दिया उसको मिला। तो चिल्ड्रन व्हाट हैपन, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कुछ पार्टनर्स अपना पार्ट दे देते हैं सामने वाले पार्टी को, जिसको ज्यादा मिलने लगता है। पहले कम मिल रहा था, अब ज्यादा मिल रहा है। या अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि मम्मा के पास 6 टॉफीज थी एंड वी आर 3 brothers and sisters. My mother was having 6 toffees, 6 chocolates she was having, and मैं सबसे बड़ी थी इसलिए मुझे मम्मी ने 3 दी। देन उससे छोटे वाले ब्रदर को मम्मा ने 2 दी और सबसे छोटे वाले ब्रदर को मम्मा ने 1 दी। ठीक है, क्योंकि वो सबसे छोटा था। या ऑपोजिट कर लो, वो सबसे छोटा था इसलिए उसको 3 मिली, फिर 2 मैं सबसे बड़ी थी तो मुझे मम्मा ने 1 दी कि तुम सबसे बड़ी हो, तुम 1 रखो। I cried and my brother who was getting 2 chocolates, he also cried. Now mama, what did my mama did? My mama distributed the chocolates equally. She was having 6 chocolates, she distributed, मम्मा ने इक्वली कर दिया। मतलब 6 को मम्मा ने क्या किया, 2, 2 और 2 तीनों में डिवाइड कर दिया। अब इससे देखिए, मुझे प्रॉफिट हुआ क्योंकि मुझे पहले 1 मिल रही थी, अब नाउ आई एम गेटिंग 2। सेकेंड वाले को कुछ भी नहीं हुआ, उसको पहले भी 2 मिल रही थी, अभी भी 2 मिल रही है। एंड जो सबसे छोटा वाला था उसको पहले 3 मिल रही थी, नाउ इज गेटिंग 2। मीन्स उसने जो सैक्रिफाइस किया, जो उसने दिया वो मैंने ले लिया। मुझे 1 इंक्रीज हो गई और उसकी 1 कम हो गई। मीन्स उसका वाला जो 1 उसने दिया वो 1 मैंने क्या करा, ले लिया। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चिल्ड्रन चेंज होता है उस कंडीशन में व्हाट हैपेंस, कुछ पार्टनर्स देते हैं, कुछ पार्टनर्स लेते हैं। जो देते हैं वो क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं सैक्रिफाइस करना। मीन्स मेरे ब्रदर ने 1 पार्ट सैक्रिफाइस किया और मुझे मिला, तो मैंने क्या किया, उसको गेन किया। तो what happens when profit sharing ratio changes? Some partner gains and some partner sacrifices, and किसी पार्टनर के रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, जैसे कि बीच वाले ब्रदर के साथ हुआ। तो इट इज क्लियर व्हाट हैपेंस, कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं और कुछ पार्टनर गेन करते हैं। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का। तो लेट अस सी हाउ वी कैलकुलेट द रेशियो। 3 पार्टनर्स वर देयर, A, B and C. Okay, their ratio was, old ratio मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का जो रेशियो था वो था 3:2:1। 3 chocolate, 2 chocolate and 1 chocolate. अब I cried तो मम्मा, what did mama did? Mama did 1:1:1 means equally. 3 जने हैं, तीनों को इक्वली बांट दो, 1:1:1। अब ये जो पहले था वो हो गया ओल्ड रेशियो, दैट इज OR। जो अब बढ़ रहा है वो हो गया न्यू रेशियो, दैट इज NR। अब हम कैलकुलेट करेंगे हम क्या करते हैं, हम करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये ज्यादा है, ये कम है, तो क्या होगा, पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है तो सैक्रिफाइस, पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिल रहा है तो गेन। कैसे करेंगे, देखिए A का हम कैलकुलेट करें तो A को पहले कितना मिल रहा था, 3 + 2 + 1 is 6, 3/6। अब कितना मिल रहा है, 1 + 1 + 1 is 3, 1/3। A को पहले मिल रहा था 3/6, अब मिल रहा है 1/3। तो 6 3s are 18 is the LCM. Okay,
सॉल्व करना आता है। 18 इज द एलसीएम, 6 की टेबल में 18 इज 3 टाइम्स, तो 3 3 इज 9। देन 3 की टेबल में 18 इज 6 टाइम, तो 6 1 इज 6। ए को पहले 9/18 मिल रहा था, अब 6/18 मिल रहा है, मीन्स अब कम हो गया। पहले 9 था, अब 6 हो गया। दैट मीन्स ए ने 3/18 पार्ट जो है वो दिया, मीन्स 1/6 पार्ट ए ने दिया। मतलब अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो इसका मतलब आपने दिया, पहले आपको ज्यादा मिल रहा था, अब आपको कम मिल रहा है। बी का देखें चिल्ड्रन, तो बी का क्या होगा बच्चे, बी को पहले मिल रहा था 2/6, अब मिल रहा है 1/3। 2/6 1/3। तो अगेन 18 LCM will be there, 6 3 is 18, 3 2 is 6, minus 3 6 is 18, 6 1 is 6, 0/18। ए बी को कुछ भी नहीं हुआ, पहले जितना मिल रहा था अभी भी उतना ही मिल रहा है। सी पे आ जाइए। सी के साथ क्या हुआ, सी को पहले मिल रहा था 1/6, नाउ सी इज गेटिंग 1/3। अगेन 18 इज द एलसीएम, 18 एलसीएम आने के बाद 6 3 is 18, 3 1 is 3, 3 6 is 18, 6 1 is 6। पहले बी को मिल रहा, सी को मिल रहा था 3/18, अब मिल रहा है 6/18। पहले मिल रहा था 3/18, अब मिल रहा है 6/18। पहले 3 था, अब 6 मिल रहा है, माइनस में आ रहा है 3/18, दैट इज 1/6 माइनस में आ रहा है। तो मतलब सी को अब ज्यादा मिल रहा है। तो क्या हुआ, जितना ए ने सैक्रिफाइस किया है उतना ही पार्ट सी ने क्या किया है बच्चे, गेन किया है। ये जो होगा ये इक्वल रहता है, हो सकता है यहाँ पर बी का भी कुछ होता तो वो बराबर हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट में गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं एंड उस अकॉर्डिंग एंट्रीज हमको करनी पड़ती है। अब हम क्या क्या एडजस्ट करेंगे, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर्म का तो हम क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट्स करते हैं बहुत सारी चीजों के। मतलब पुराना हम बंद करते हैं, अभी मैंने आपको बताया जब पुराना बंद करते हैं तो पुराने से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं हम वो करते हैं। तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स हम करेंगे वो देखते हैं।